Let me welcome CA Pratik let me welcome CA Pratik Bathwal, the speaker for today. He is a very dynamic person. So I first of all, let me introduce and let me invite CA Sumit Bihani for his opening remarks. Hi, good morning, everyone. Thank you for joining the meeting and making a successful. I hope this also turns to be a next successful learning session. And I thank Prateek for sparing time, and we can so that we can learn from him and his experience. And back to you, Rahul. Just one quick reminder that we have our annual conference also, so please register in case you have not. Back to Rahul. Thank you, Bia, for your remarks. So as time is pressing, so let me introduce our speaker for the day, CA Pratik Kumar Bathwal. He is a BCom graduate. He is also a ACA and DISA qualified. He is a practicing chartered accountant since 2017. He has done his schooling from Rajkumar College, Raipur, and he has secured 22,000 position in India at AIEEE 2012. Oh, very good. And as well as he has secured 11th position in India at CPT. He has secured first position in Chhattisgarh at IPCC level. He has cleared CA final both groups in May 2017 attempt. Also, he is a proprietor at Messrs. P. Bathwal and Company, Raipur since December 17 itself. He is a founder at Bathwal Mastermind Labs community. He is an automation entrepreneur and coach. His specialization includes, but not limited to, ERP with architecture of integrated information systems. As along with that, he is also internal control systems designing and documentation of standards operating procedures. He has also expertise in advanced Excel and Access solutions. He has expertise in robotic process automation and information systems review, ERP testing, automation framework. He has a lot of professional contributions, which includes he has launched an open batch which is free for past ITT and advanced ITT students as a mini e-Sahayata helpline which is focused on automation. He has also launched a 10-day physical bounce back batch with effective from 17 February 2023. He is also a faculty in ICI's Advanced Information Technology Training Programs on Introduction to Macros and VBA topics in 2017 itself. He has also conducted lots of trainings and seminars and workshops. He is also a career counseling under the ICI banner. As well as he has taken a lot of initiatives during his 1.5 years of practice, which includes he is a convener and coordinator in various study circles, which is speakers and movers circle meetings. He is also a programmer by passion, which includes he is a digitized advanced ITT sessions with app-based live attendance management, along with a lot of other activities. He has also got recent accolades, which includes that he has he has done testing, implementation, and upgradation of an in-house ERP at India's largest franchisee holder of Kamdhenu TMT with a turnover of approximately 1200 CR, which is very incredible. Pratik. He is also engaged with lots of social commitments, which includes that he is associated with JCI Raipur Royal Capital. He is associated with International Trainers Council. He is also a silent committee member at Green Army Raipur. He is also an active member of the Terap and Professional Forum. So not only that he is professionally equipped, he is also very much socially engaged. So without taking much of the time, let me introduce and let me invite CA Pratik Kumar Bathwal for his deliberations. Before you do that, Rahul, I would like request our secretary Vikas Bathwalji to please share his remarks. Okay. So let me acknowledge the presence of our secretary, CA Vikas, secretary for VIP CA Vikas Bathwal. So requesting Vikas Bhaiya for your opening for your remarks, please. Thank you, Rahul. Thank you, Sumit, for giving me an opportunity. I, on behalf of VIPCA, as a deputy convener, hello, hello, welcome You are audible, all. Bhaiya. You are audible. Yeah. I, on behalf of VIPCA, Vikas, the deputy convener, welcomes all of you in today's session. The today's session is taken by Pratik Bathwal, is my younger brother. He's from Raipur. I think all will enjoy the session. Thank you. Over to Pratik now.
Thank you very much. Thank you everyone for the warm introduction and all the greetings. So I hope everyone is ready with their systems up. And I want everyone to follow 3 key mantras during the session, that is AOP. So A stands for attention, O stands for observation, and P stands for participation. So all of you, those who are available now, please type AOP in the chat box. I want you to engage with me on the chats. Please type AOP, everyone. Perfect, perfect. Amit ji, Jaya ji, Mahesh ji, Rashmi ji. Great, great. हम chats को बहुत extensively use करेंगे because I need that two-way communication. Also requesting all the members who can turn on their videos, please turn it on. Let the energy exchange begin. Right? So आज का हमारा topic है Excel macros and Google Sheets. Excel macros is something that helps us automate our bulk repetitive tasks. हम कोई भी चीज को एक बार रिकॉर्ड करके उसे मल्टीपल टाइम्स रीरन कर सकते हैं एंड इसे हम आज एक इंट्रोडक्शन टाइप से कवर करेंगे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूज केसेस बट हाउ डू अ न्यू कमर, अ टोटल बिगिनर स्टेप इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन. हम वो चीज आज कवर करेंगे. दिस सेम कंटेंट is being taken up by me in advanced ITT and ITT session since last 2 years, since last 7 years. तो उसमें से जो हैंड्स ऑन वाला टाइम है और जो इंटरेक्टिव वाला टाइम है उसको हम थोड़ा सा कट डाउन करके हाफ एन आवर के आसपास में वो पूरा कंटेंट कवर करने की कोशिश करेंगे. राइट? सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, आई वांट ऑल माय डियर मेंबर्स टू प्लीज गेट इन सम नॉस्टैल्जिया. अपने बचपन की यादें ताजा कीजिए और एक कोई ब्लू कलर का कार्टून कैरेक्टर रिकॉल कीजिए हैविंग मैजिकल पावर्स. क्विक आंसर्स इन द चैट बॉक्स. कम ऑन रिकॉल कीजिए. वन ब्लू कलर्ड कार्टून कैरेक्टर हैविंग मैजिकल पावर्स. One answer, right? Doraemon, okay. Doraemon. Genie, okay. Others, come on. चलो, cool, good enough. So Genie को सब जानते हैं. Anyone here who needs introduction of Genie? Genie क्या करता है? So Genie grants wishes, या जो काम हम उसे बोलते हैं वो काम Genie हमें करके देता है. राइट? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप सबको को एक एक पर्सनल जीनी मिलेगा. आपको उस जीनी को अच्छे से ट्रेन करना है और उनसे अपने सारे रिपीटेटिव टास्क करवाने हैं. ओके, टेक्निकली हम इसे एक्सेल मैक्रोस बोलते हैं बट प्यार से, क्योंकि वी आर इन अ क्लोज ग्रुप, हम इसे आज जीनी करके रिस्पॉन्ड करेंगे. अब ये बताइए कि जीनी के लिए हमें क्या चाहिए. जीनी को अगर बुलाना है तो जीनी बुलाने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा पहले? Answers in the chat box, quick. अगर मुझे जीनी को कॉल करना है, करेक्ट, आई वॉन्ट दैट चिराग. मुझे वो चिराग चाहिए जिससे मैं जीनी को बुलाऊंगा. तो हम पहले समझते हैं कि एक्सेल में वो चिराग कहां छुपा हुआ है. लेट मी जंप टू माई स्क्रीन. जो भी मेरे साथ साथ हैंड्स ऑन करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, प्लीज ओपन अ ब्लैंक एक्सेल फाइल. ओके, सो इज दिस स्क्रीन विजिबल जिसमें एक्सेल का इंटरफेस है? ओके, परफेक्ट. थैंक यू आदित्य जी फॉर रिस्पॉन्डिंग. तो हम एक ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन कर रहे हैं. एक्सेल वर्जन से हमें फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वी आर हियर टू इवॉल्व आवर थॉट प्रोसेस. टुडे आवर मेजर फोकस 80% ऑफ द टाइम वी विल बी फोकसिंग ऑन द नेचुरल इंटेलिजेंस पार्ट. फिर हम लास्ट में एआई से उसका तड़का लगाएंगे. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल. देखिए, आपके घर के लैपटॉप्स में, ऑफिस के सिस्टम्स में आपको सबसे पहले वो चिराग को ढूंढ के सामने लाना है.
तो आपको जाना है एक्सेल में, फिर ऊपर में ये फाइल बटन होता है, फाइल में जाके एक्सेल ऑप्शंस। जैसे ही आप एक्सेल ऑप्शंस में जाएंगे ऐसा एक विंडो खुलेगा। यहां पे आपको कस्टमाइज रिबन पे जाना है। कस्टमाइज रिबन पे जाके राइट हैंड साइड में वो सेक्शन देखिएगा, यहां पे आपको मेन टैब्स का ऑप्शन दिखेगा। आई होप यू आर फॉलोइंग। मेन टैब्स में ये डेवलपर करके एक ऑप्शन होगा जो कि अनटिक्ड होगा इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसको आपको टिक करके ओके करना है, दैट्स इट। So for those of you who are not able to catch up, you can take a screenshot of this. हम एक्सेल में फाइल में गए, ऑप्शंस में गए, कस्टमाइज रिबन एंड द डेवलपर ऑप्शन हियर। तो ये अनटिक्ड होगा, इसे आपको टिक करना है। आई होप वी आर गुड टू गो। प्लीज टाइप GTG गुड टू गो। मेंबर्स इन द चैट्स प्लीज। गुड। तो ये हमने इनेबल कर दिया। अब जल्दी से डेवलपर टैब में आइए, यहां पे आपको एक रिबन दिखेगी। इस रिबन के फर्स्ट ग्रुप में कितने बटन्स हैं? आंसर्स इन द चैट बॉक्स। कितने बटन्स हैं? ओके, वी हैव वन रिस्पॉन्स। अदर्स? परफेक्ट पंकज जी। सो वी हैव दीज 5 बटन्स डेवलपर टैब में, राइट? ग्रेट। सो इसमें पहला बटन है फॉर विजुअल बेसिक, सेकेंड बटन है फॉर मैक्रोज, थर्ड बटन इज फॉर रिकॉर्ड मैक्रो, fourth button is for use relative references, and fifth button is for macro security. अब कॉमन सेंस से बताइए कि मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रो में क्या डिफरेंस होगा? कुछ तो फर्क होगा। जस्ट थिंक फॉर 1 सेकेंड एंड देन वील कंटिन्यू। तो देखिए, हमने जीनी से जीवन भर क्या एक ही काम कराना है? नहीं, मुझे उसे हजारों काम करवाने हैं। तो वो सारे 1000 टास्क की जो लिस्ट होगी, मैंने जो जो काम जीनी को सिखाए हैं, वो लिस्ट मुझे मिलेगी यहां मैक्रोज के अंदर। ओके, ये अभी ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ सिखाया ही नहीं है। और मुझे जब कोई नया काम सिखाना है तो वो मुझे मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर। तो मैंने जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, नाउ जीनी इज पेइंग अटेंशन। वो सारे स्टेप्स ऑब्जर्व कर रहा है, वो सारी चीजें याद रख रहा है और वो आगे उन चीजों को रीरन कर पाए, राइट? सो लेट्स से कि यहां पे मैंने कुछ डमी टेक्स्ट डाल दिया। लेट्स जूम इन। अब मुझे इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, तो मैंने एक बार रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। अब वो उस टास्क को याद रखने के लिए एक मैक्रो नेम पूछ रहा है। मैक्रो 1 अ डमी डिफॉल्ट नंबर इज गुड फॉर अस। इसको हमने ओके कर दिया। अब आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला बटन आ गया है। पहले था स्टार्ट रिकॉर्डिंग, अब प्लीज है प्लीज पार्डन ना, लाइन ड्रॉप कर रही थी 2 मिनट पहले। आपने जो ये लेटर्स को करने बोला था उसके बाद क्या बोला? ओके, श्योर श्योर। तो मैंने सेल B2 पे रैंडम लेटर्स डाल दिए हैं, सैंपल टेक्स्ट। और हम चाह रहे हैं कि हम इस सेल को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। बट वो फॉर्मेटिंग मैं बार बार खुद से नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मेटिंग स्टेप्स एक बार मैं जीनी को सिखा दूं। तो मैंने जब ये टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना शुरू करना था, उसके पहले मैंने इस बटन पे क्लिक किया और मैंने बोला स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो अब ये बटन चेंज हो गया। टॉप लेफ्ट में देख रहे हैं, ये पिंक हाइलाइटर के साथ में आपको दिखेगा। नाउ दिस थिंग हैज चेंज्ड। पहले वो था मैक्रो रिकॉर्डिंग, अब उस बटन में स्टॉप का सिंबल आ गया। नाउ इट इज चेंज टू स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर द नेक्स्ट कमांड। तो अब जीनी एक्चुअल में सीख रहा है कि मैं क्या क्या करने वाला हूं। तो मैं अब गया होम में, मैंने इसे बोल्ड किया, फिर मैंने इसे येलो फॉर्मेट किया, फिर मैंने इसे फॉन्ट कलर रेड कर दिया। ये 3 क्लिक्स मैंने किए। ओके, और मैं इधर डेवलपर टैब पे आके अब स्टॉप कर रहा हूं।
डन। बट यहाँ पे ब्लू ऊपर में दिखा नहीं रहा था, वो रिकॉर्ड मैक्रोस जैसे अभी दिखा रहे हो, क्लिक करने के बाद वैसा ही दिखा रहा था, देयर वाज नो चेंज। ओके, लेट्स से अगेन रीट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट डाल दिया। नाउ एवरीवन, मैंने आप लोगों से 3 क्राइटेरिया, 3 एक्सपेक्टेशन रखी थी एओपी, राइट? सो प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे डमी टेक्स्ट डाल दिया, एक्टिव सेल इज माय B2। अभी जो रिकॉर्ड मैक्रो बटन है, मैंने जैसे ही क्लिक किया इसे, recording will start. It will ask for another name, macro2, and this symbol has changed. Now is it visible? यस। Right. तो this indicates कि भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, अब स्टॉप करना है तो फिर से इसी को दबाना है। ओके, नाउ लेट्स गो बैक। होम पे गया मैंने इसे बोल्ड किया, येलो किया, रेड किया। 3 स्टेप्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए और अब मैं इसे जाके स्टॉप कर रहा हूं। तो अब macro2 नाम से एक कोड जनरेट हुआ होगा जीनी के दिमाग में, जिसमें उसने याद रखा कि भाई कुछ भी सेल पे मुझे अगर ये macro2 रन करवाना चाहेंगे तो हमें क्या करना है, उसे बोल्ड येलो रेड फॉर्मेट करना है। अब मुझे अगर इस सेल D3 को वैसा ही सिमिलर फॉर्मेट करना है तो मैं रिकॉर्ड मैक्रो में जाऊंगा कि मैक्रोज में? मैक्रोस। राइट, यहाँ पे हमें 2 मैक्रो दिखेंगे तो मैं macro2 सिलेक्ट करके रन कर दूंगा। एंड दोज 3 steps have been rerun by GT over here in this cell. Okay? अगर ये एग्जांपल सबको क्लियर है तो स्केलेबिलिटी यहीं से समझिए। मेरे मैक्रो रिकॉर्डिंग के अंदर 3 स्टेप्स हो या 3 लाख स्टेप्स हो, क्या जीनी को कुछ फर्क पड़ रहा है? यस और नो इन द चैट बॉक्स। करेक्ट, थैंक यू आशीष जी। तो जीनी को नहीं फर्क पड़ रहा। इस तरीके से हमारा प्रोसेस कितना भी लेंदी हो, जब तक हमें हमारे प्रोसेस में क्लैरिटी है, वी कैन रिकॉर्ड एंड ऑटोमेट n नंबर ऑफ स्टेप्स एंड n नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन वन गो और इन पार्सल्स, और हम उसके बाद जीनी को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किस किस सीक्वेंस में उसे वापस से रिपीट करना है। राइट, चलिए अब ये बताइए, मैं अगर इस सेल पे हूं, ध्यान से जया जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपका डाउट समझ नहीं आ रहा। ओके, लेट्स मूव ऑन। लेट्स चेक योर ऑब्जर्वेशंस के। बोलिए प्रतीक क्या बोल रहे थे, बोलिए। आपने कुछ चैट बॉक्स में डाला है? हाँ, मैंने लिखा कि आपने जो सेकंड वाला, आपने जो D3 में जब लिखा तो उसमें जब रन किए उसको, तो वो वापस से पार्डन करिए ना प्लीज, जो सेकंड वाले पे मेरा हुआ नहीं एक्चुअली। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हम आ गए हैं इधर F4 में, यहाँ पे भी कुछ डमी टेक्स्ट डाल दिया है। मुझे अब इधर पे रन करना है हमारा मैक्रो नंबर 2। ओके, तो हम मैक्रोज में जाएंगे। यहाँ पे वो मैक्रो में सारी लिस्ट आ जाएगी, कितने भी हमने टास्क जो जीनी को याद कराए हैं। तो यहाँ पे हम macro2 सिलेक्ट करके रन पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। तो हमने जब रिकॉर्डिंग की थी उसमें जो 3 स्टेप्स हमने किए थे, कौन कौन से? ये बोल्ड, येलो एंड रेड। अब जीनी ने वही 3 स्टेप्स वापस से इस सेल पे रीअप्लाई कर दिए। आई होप वी आर क्लियर नाउ, जय जी। हेलो, Pratik, you proceed. Pratik, proceed. ओके ओके, डन। चलिए अब हम आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स वापस से टेस्ट करते हैं। हमने एक macro1 भी रिकॉर्ड किया था। लेट्स कम हियर, यहाँ पे फिर से एक डमी टेक्स्ट डाला। अगर मैं macro1 रन करूं तो क्या होगा? आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू रिकॉल कि हमने macro1 रिकॉर्ड करते समय क्या किया था, और गेस कीजिए कि मैं अगर macro1 सेल H6 पे रन करूं तो क्या होगा। 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and let's see. तो यहां पे सेम चीज रीअप्लाई हो गई, कोई फर्क नहीं है, राइट? बट अब हम एक मैक्रो और रिकॉर्ड करेंगे एंड लेट्स सी द डिफरेंस। यहां पे हमने डमी टेक्स्ट डाला, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, मैक्रो 3, होम पे गए। ओके, इस सेल को फॉर्मेट करना है बोल्ड, येलो, रेड एंड रिकॉर्डिंग स्टॉप, राइट? कमिंग बैक हियर, डमी टेक्स्ट डाला और मैक्रो 3 रन किया। क्या हुआ? सेल D8 फॉर्मेट हुआ क्या? यस और नो? नो नो नो। गुड, responses are coming. Please stay active on the chats. क्यों नहीं हुआ उस पे समझते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने जब मैक्रो 3 रिकॉर्ड किया, करेक्ट, मैंने जब मैक्रो 3 रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते टाइम मेरा एक्टिव सेल कहां था? B6 में था कि B7 पे था? आंसर्स रिकॉल कीजिए। मैंने जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते समय मेरा एक्टिव सेल क्या था? B6 की B7? B7। और मैंने रिकॉर्डिंग के अंदर में सेल सिलेक्शन चेंज किया था, B6 किया था और फिर हमने फॉर्मेटिंग की थी। रिकॉलिंग दिस? यस और नो? टाइप यस और नो, Y और N। परफेक्ट। तो देखिए, ये एक क्लिक ने हमारे पूरे रास्ते बदल दिए। पहले जब हमने मैक्रोज 1 और 2 रिकॉर्ड किए थे, उस समय पे जीनी ने क्या समझा कि मैं जिस भी एक्टिव सेल पे रहूंगा मुझे उसे फॉर्मेट करना है। लेकिन जब मैंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रिकॉर्डिंग में डाल दी कि B6 को फॉर्मेट करना है, तो जीनी ने क्या याद रखा कि मैं किसी भी सेल पे रहूं, रैंडम सेल पे, मैं हर बार पहले B6 ढूंढूंगा और उस B6 को फॉर्मेट करूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर हम इस सेल पे वापस से मैक्रो 3 रन करते हैं, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, सेल सिलेक्शन चेंज हो जाएगा। D8 से एक्टिव सेल B6 जाएगा, जीनी काम कर रहा है, वो इस सेल को रीफॉर्मेट कर रहा है, बट क्योंकि पुराना नया सेम है, हमको डिफरेंस विजिबल नहीं है। लेट्स सी, मैक्रो 3 रन, एक्टिव सेल चेंज हुआ एंड रीफॉर्मेटिंग भी हुई, बट द डिफरेंस इज नॉट विजिबल। आई होप दिस इज क्लियर। टाइप C फॉर क्लियर everyone. Good, please participate here. परफेक्ट। तो ये हुआ हमारा मैक्रोस का बेसिक, कि कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे रन करना है और किस किस चीज पे ध्यान देना है। हमें हर माउस क्लिक, हर की स्ट्रोक पे ध्यान देना है। मैंने इसीलिए ये राइट में जो बॉक्स डाला है, ये आपको की स्ट्रोक्स दिखाने के लिए डाला है, और ये पॉइंटर भी अलग से हाईलाइट करने के लिए रखा है। हमें हर चीज पे ध्यान देना है, हर चीजें जीनी ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, चलिए, अब अगर यहां तक आपको क्लियर है तो यहां देखिए, जो 4th बटन है, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, जिनके पास स्क्रीन है, आप लोग उस स्क्रीन पे जाइए, एक्सेल स्क्रीन पे, और इस पे माउस रख के ये पॉपअप लाइए, हवर कीजिए माउस को, पॉपअप आ जाएगा, और इस पॉपअप को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। आई गिव यू 1 मिनट कि इसे समझिए, सो दैट स्पून फीडिंग मोड में नहीं, हम लर्निंग मोड को एक्टिवेट कर पाए। जिनके पास एक्सेल अवेलेबल नहीं है, आई एम रीडिंग आउट फॉर देम। So use relative references, heading, use relative references so that macros are recorded with actions relative to the initial selected cell. For instance, if you record a macro in cell A1, which moves to the cursor to A3, A1 पे था और A3 गया, okay?
With this option turned on, running the resulting macro in J6 would move the cursor to J8. तो अगर हमने इसे ऑन रखा तो वो मैक्रो अगर मैं J6 पे रख के रन करता हूं तो वो J8 पे जाके एग्जीक्यूट होगा. करेक्ट? If this option is turned off, the macro that was recorded running it in J6 will move the cursor to A3 and executed it there. तो अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो J6 से अगर मैंने कोई मैक्रो रिकॉर्ड करके रन किया तो वो हर बार कहां जाएगा? A3 पे. ये इंग्लिश टू हिंदी सबको क्लियर है क्या? टाइप H अगर हिंदी वर्जन क्लियर है. हम इसको और डेप्थ में समझेंगे. We'll spend 5 minutes on this. Please type H. Okay. गुड. चलिए, इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम जीनी के दिमाग में घुसने वाले हैं. हम जीनी के बैकएंड पे जाएंगे और कोड लेवल पे स्टडी करेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है. ओके, तो जो लोग अभी फॉलो कर रहे हैं साथ में एक्सेल, दे नीड टू डू 2 थिंग्स. फर्स्ट इज आपको यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है. जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे एक सेपरेट विंडो एप्लीकेशन ओपन होगी. राइट. अब सबकी स्क्रीन अलग अलग हो सकती है, उसको हम बाद में यूनिफॉर्म करेंगे. ये एप्लीकेशन जो ओपन हुई है, मुझे इसको एक तरफ सेट करना है, तो मैंने विंडोज की दबाया और लेफ्ट एरो दबाया. तो ये क्या होगा? 50% पे सेट हो जाएगा. और मैंने एक्सेल की स्क्रीन को बाकी 50% पे सेट कर दिया. क्या आप सबको ने ये स्प्लिट स्क्रीन मोड एक्टिवेट कर लिया है? टाइप SS जो साथ में कर रहे हैं, प्लीज टाइप SS. स्प्लिट स्क्रीन एक्टिवेट हो गया है? ओके, आई रिपीट. हमने पहले विजुअल बेसिक विंडो ओपन किया. ठीक है, इसे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा. ये हो सकता है आपका ऐसे मैक्सिमाइज्ड हो या रिस्टोर हो, कैसे भी हो. अब मुझे बैक एंड और फ्रंट एंड को दोनों को साथ में एक्सेस करना है, मुझे साथ में देखना है. तो क्या करूंगा मैंने एक स्क्रीन को लेफ्ट साइड आधे एरिया में सेट कर दिया, विंडोज की दबाया कीबोर्ड में और लेफ्ट एरो, और बाकी एक्सेल को विंडोज की दबा के राइट एरो में सेट कर दीजिए. तो ये आपका स्प्लिट स्क्रीन मोड हो गया, मल्टीटास्क करने के लिए, चीजें फास्ट करने के लिए. आई होप दिस इज क्लियर आशीष जी. ओके, अब लेफ्ट वाला जो आपका VBA विंडो है उसमें देखिए एक ये प्रोजेक्ट वाला साइड मेन्यू खुला हुआ है. ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ सिस्टम्स में ना दिखे, कुछ में दिख रहा हो सकता है किसी में ये बंद हो. हमें वो लेफ्ट पैनल चाहिए, तो आपको कंट्रोल R दबाना है. जैसे ही आप कंट्रोल R दबाओगे तो ये प्रोजेक्ट पैनल ओपन हो जाएगा. यहां पे देखिएगा हमारे फाइल का नाम है book1. तो book1 के नाम से एक प्रोजेक्ट बन जाता है. प्रोजेक्ट के अंदर में ऐसी ट्री स्ट्रक्चर आती है. आई होप दिस इज विजिबल लेफ्ट साइड में. यहां पे एक फोल्डर होगा मॉड्यूल्स के नाम का, उसके बाजू में एक प्लस साइन होगा. आपको इसे एक्सपैंड करना है, एक मॉड्यूल 1 आएगा, इसे डबल क्लिक करना है. चलिए, जिनके लिए हैवी हो गया, लेट्स स्पेयर 1 more minute. हम जीनी के बैकग्राउंड पे जा रहे हैं. जीनी एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकता है, तो पहले हमें उसके इस पैनल में जाके अपना प्रोजेक्ट ढूंढना है. फिर मॉड्यूल्स को एक्सपैंड करके मॉड्यूल 1 पे डबल क्लिक करना है. इफ I have lost someone, please type L. I'll repeat, otherwise I'll move ahead. Anyone needs a repetition, please type L if I've lost you. Okay. अब देखिए ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. मैं अभी सेल A1 पे हूं, इन्हें हटा देते हैं फिलहाल. A1 पे हूं, मैंने यहां पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी.
जैसे ही मैंने ये मैक्रो 4 को ओके किया, यहाँ पे देखिए ये मैक्रो 4 खुद ब खुद लिखा आ रहा है, और मैं यहाँ जो जो काम करूंगा राइट साइड पे, उसकी लाइव कोडिंग मुझे लेफ्ट साइड दिखेगी। ओके, अब ये बताइए, आपकी स्क्रीन में शायद विजिबल नहीं होगा, मैं बता देता हूं। अभी यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को हमने ऑफ कर रखा है, आप सब कोई भी ऑफ कर दीजिए, ऑफ है। और मैंने एक डाउन एरो प्रेस किया। जैसे ही डाउन एरो प्रेस किया, यहां पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, रेंज A2 डॉट सिलेक्ट। अग्री? तो जीनी ने क्या याद रखा कि A2 पे जाना है। मैंने अब एक राइट एरो प्रेस किया, अब क्या लाइन आई, रेंज B2 डॉट सिलेक्ट। तो जीनी B2 तक पहुंच गया है। बट ये बताइए, एवरीवन रेडी विथ योर चैट बॉक्स, टाइप यस और नो। ये बताइए कि इस पोजीशन पे क्या मेरे जीनी को ये याद भी है कि वो कभी A2 गया था? क्विक, यस फॉर याद है, नो फॉर याद नहीं है। क्विक, नो, देखिए जीनी क्या करेगा, हमने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ खोल दिया है। जब भी मैं मैक्रो रन करने बोलूंगा, वो इधर आके इस कोड को लाइन बाय लाइन रीरन करेगा। तो क्या इसे यहाँ पे कभी दिखेगा कि वो रेंज A2 पे गया था? नहीं दिखेगा। उसने क्या याद रखा, B2 पे। बीच का जर्नी वो याद नहीं रख रहा है। अंडरस्टैंडिंग? अब अगर मैं इस सेल पे जाके वापस से बोल्ड करूं, तो अगर यहां पे कुछ टेक्स्ट होता तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाता, और कोड में देखिए क्या लिखा रहा है, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू। तो बोल्ड की कोई प्रॉपर्टी होगी, पहले फॉल्स होगी, नॉर्मल था, अब ट्रू हो गई। डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लिक हमने की थी येलो कलर पे। तो जब मैं इस येलो फिल कलर पे क्लिक करूंगा, अब ये जो भयानक सा कोड आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ये बताइए ये कोड की टेंशन अपन को लेनी है क्या? हेलो एवरीवन, इस कोड की टेंशन क्या अपन को लेनी है, यस और नो? नो, नो, परफेक्ट। कौन ले रहा है ये टेंशन? हमारा जीनी ले रहा है। अगर आप ये समझ गए ना, इतना सा डाइजेस्ट हो गया हाउ इजी ऑटोमेशन कैन बी, अगर ये फील आ गई तो सेशन वसूल है। तो अब इस कोड का फील लेके देखते हैं क्या लिखा आ रहा है, विथ सिलेक्शन डॉट इंटीरियर के बाद पैटर्न कुछ कुछ, पैटर्न कलर इंडेक्स कुछ कुछ, पैटर्न डॉट कलर 65535। मुझे पता है येलो ही होगा क्योंकि मैंने येलो पे क्लिक किया था। यस और नो? इसीलिए हमने बैक एंड और फ्रंट एंड को साथ साथ रखा है। नेक्स्ट क्लिक क्या था, रेड कलर का, सेम कहानी। अब ये जो कोड आया, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट कलर इज इक्वल टू -16776961, ये रेडी होगा, राइट? तो यही स्टेप्स हमने जब फ्रंट एंड पे किए तो जीनी उसको ऐसे याद रख रहा है। और प्लीज रिमेंबर, हम सब क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आप लोग को प्रोग्रामर डेवलपर कोडर बनाने का, वो बहुत है। बट हम बिजनेस फंक्शंस को, बिजनेस नॉलेज को इतना सा कोडिंग का फेमिलियरिटी लाकर बहुत अच्छे से ऑटोमेशन मोड पे ले जा सकते हैं, खुद के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी। वी कैन बी द ब्रिज बिटवीन बिजनेस यूजर्स एंड द कोडर्स। मैं उस डोमेन में आप लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूं। आई होप दिस इज क्लियर। सो अब हम इस रिकॉर्डिंग को करते हैं स्टॉप। डन, ये रिकॉर्डिंग हो गई स्टॉप। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने आज आधा एक घंटा स्पेंड किया ना, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये आपको अगर क्लियर है, आगे बहुत सारी चीजें गूगलेबल है, बट ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए कि हाउ विल आई नेविगेट द शीट्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे। मैं कुछ टेक्स्ट डाल दे रहा हूं ताकि वो विजिबल हो।
बट अब हम यहाँ पे इस यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन करके रिकॉर्ड करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। हमने अभी ऑफ करके रिकॉर्ड किया, लेट्स सी ऑन करके जब रिकॉर्ड करते हैं तब जीनी क्या डिफरेंट समझता है। ओके, इसे हमने ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, मैक्रो 5। हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था? आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्लीज। फर्स्ट स्टेप क्या था? एक डाउन एरो, करेक्ट? तो हम एक डाउन एरो प्रेस करते हैं और देखते हैं कोड में क्या फर्क आएगा। ध्यान से देखिए, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 करके कुछ तो लिखा है। ब्रेक डाउन करते हैं। ऑफसेट मतलब शिफ्ट करना सेल्स को, एंड ऑफसेट का सिंटेक्स है रोज कॉमा कॉलम्स, मतलब ऑफसेट 1 रो एंड 0 कॉलम्स। तो हम एक सेल नीचे आए। आई होप दिस इज क्लियर। जीनी ने क्या याद रखा? मैं जहां भी था वहां से मुझे शिफ्ट करना है सेल को और एक रो नीचे जाके रुक जाना है। ओके, अब अगर हमने एक राइट एरो प्रेस किया तो बताइए कोड में क्या चेंज होगा? क्विक क्विक क्विक, ऑफसेट 1,1। तो मेरा जो भी स्टार्टिंग पोजीशन था वहां से एक डाउन और एक राइट। आई होप दिस इज क्लियर। टाइप सी इफ दिस इज क्लियर। मेंबर्स हेलो, थैंक यू। तो अब बताइए दोनों ही मोड में क्या जीनी को याद रह रहा है कि वो कभी A2 भी गया था? नहीं। सो कैन वी कंक्लूड कि अपना जीनी पार्शियली गजनी भी है? सिर्फ मुद्दे की बात याद रखता है कहां पे काम करना है, राइट? एंड दिस ऑल्सो मेक्स द कोड एफिशिएंट। एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड्स, गार्बेज लाइंस ऑफ कोड्स आ ही नहीं रही है, तो जीनी इज ओवरऑल स्मार्ट इनफ टू हैंडल दिस। अब जो हमारे बाकी के क्लिक्स थे टक टक टक, उसमें मैक्रो 4 और 5 में कुछ डिफरेंस आएगा क्या? जल्दी बताइए, यस और नो? हेलो हेलो हेलो। इट्स ओके टू टेक टाइम टू थिंक। बट हमने क्या वही क्लिक्स किए, बोल्ड येलो एंड रेड? तो कोड भी क्या हूबहू सेम होगा? 100% यस। बट इन दोनों वर्जन्स में डिफरेंस क्या था? सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ कोड का, जहां पे हमने एक मोड में सेल रेफरेंसेस को याद करा दिया जीनी को, और दूसरे मोड में हमने रास्ता बता दिया जीनी को। आई होप दिस इज क्लियर। उल्टा पकड़ते हैं। अगर मुझे कोड में ऑफसेट दिख रहा है तो यहां पे यूज रिलेटिव रेफरेंसेस ऑन होगा कि ऑफ होगा रिकॉर्डिंग के टाइम? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स ऑन स्लैश ऑफ। दो ऑप्शंस है। अगर मुझे कोड में कहीं ऑफसेट दिख रहा है तो यहां पे यूजर ने रिकॉर्ड करते समय ऑन रखा होगा कि ऑफ? परफेक्ट परफेक्ट। सिमिलरली अगर मुझे कहीं कोड में एग्जैक्ट सेल रेंज दिख रहा है तो यहां पे रिकॉर्डिंग के टाइम पे यूज रिलेटिव रेफरेंसेस ऑन होगा कि ऑफ? क्विक। परफेक्ट। जिन्होंने पहले ऑन बोला था वो समझ रहे हैं कि अब ऑफ हो। ओके, तो अब देखिए ये दो सैंपल्स में हमें इस एक बटन की यूटिलिटी समझ में आ गई, कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए अपने कैजुअल लैंग्वेज में भी समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। यस, देखिए जब यूज रिलेटिव रेफरेंसेस वाला बटन
ऑफ है, ठीक है, तब जीनी कैन सी कि किस सेल पे यूजर वर्क कर रहा है। ही कैन सी कि अभी B2 पे है, अभी H6 पे है, अभी D5 पे है। जीनी कैन सी जब यूज रिलेटिव रेफरेंसेस ऑफ है, एंड जब यूज रिलेटिव रेफरेंसेस ऑन कर देते हैं तब जीनी इज ब्लाइंड फोल्डेड। ही कैनॉट सी कि किस सेल पे काम हो रहा है। जीनी सिर्फ ये ध्यान रख सकता है कि मैं अभी यहां खड़ा था, और चेस के पीसेस टाइप 2 स्टेप आगे 5 स्टेप पीछे, लेफ्ट राइट, वो सिर्फ रास्ता याद रखता है कि मेरे को जहां पे भी खड़ा रहना पड़े, इस रास्ते को फॉलो करके मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा जहां पे मुझे नेक्स्ट एक्शन करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत बेसिक चीज है। कई यूजर्स जो एक्सेल मैक्रो सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे शायद 3-4 महीने भी वेस्ट कर देते हैं, बट उनको क्लैरिटी नहीं आती। सो आई वांट कि आप सबको वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे। एंड वी हैव अ हैंड रेज आल्सो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो, अच्छा मेरा ही, ओके सॉरी। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब जिनको यहां तक की कहानी क्लियर है उन्हें हम एक प्रैक्टिकल यूज केस दिखाते हैं कि सिर्फ इतने नॉलेज से व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर दैट यू कैन अचीव। ओके, आप सबको को मेरी स्क्रीन विजिबल है? प्लीज टाइप यस। राइट, सो दिस इज अ 6-7 ईयर ओल्ड असाइनमेंट। हमें एक रीजनल रूरल बैंक का ऑडिट करना था, एंड ड्यू टू द कंस्ट्रेंट्स हमें जनरली एक ही दिन में ना 3-4 ब्रांचेस कवर करनी होती है, राइट। सो हमने क्या किया, शुरू के 2-3 ब्रांचेस में मैन्युअली पूरा काम समझ लिया। हमें वहां पे 2 रिपोर्ट फोल्डर्स मिलते थे, तो मार्च 18 का एक पूरा रिपोर्ट फोल्डर ले लिया। इसमें कुछ 100 फाइल्स हैं, 100-150 फाइल्स हैं। वैसे ही ओपनिंग बैलेंसेस के लिए मार्च 17 का एक रिपोर्ट फोल्डर ले लिया। ये एक ब्रांच की 200-250 फाइल्स हो गई। ये फाइल्स को हमने 2-3 ब्रांचेस में अच्छे से स्टडी कर लिया कि कौन कौन सी फाइल्स हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है, बाकी सब MIS है, मतलब बैंक के इंटरनल पर्पस के लिए। अंडरस्टूड? वो एनालिसिस करके हमने समझ लिया कि ये 35 फाइल्स जो मैंने अनजिप करके बाहर रखी हैं, इनको स्टडी करके हमको ऑडिट करना है। फाइल्स नॉर्मल आप सब बैंक ऑडिट्स पे जाते हैं तो वो आपके प्रिंट फॉर्मेट के हिसाब से सेट होती है इस टाइप से। अग्री? तो अब हमें इन सारी डेटा को एनालाइज करने के लिए पहले तो इसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करके फिर टैबुलेट करना है, फिर कंपैरिजंस वगैरह डालने हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक मैक्रो बना लिया, एक ब्लैंक फाइल बनाई। राइट, ये वर्किंग वाला जो है इसमें कोई शीट्स हिडन नहीं है, ब्लैंक फाइल है। अब मुझे इसमें वो सारी फाइल्स इंपोर्ट करनी है, तो मैं डेवलपर पे गया, मैक्रोज में गया। यहाँ पे एक इंपोर्ट वाला मैक्रो मेरा बना हुआ है, और कुछ कुछ फॉर्मेटिंग, कंपैरिजन, फिल्टर, ये सब के लिए, सॉर्टिंग वगैरह के लिए। तो मैंने सिर्फ इंपोर्ट वाले मैक्रो को रन किया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एवरीवन रेडी? प्लीज टाइप R इफ यू आर रेडी। प्लीज टाइप R क्विक। थैंक यू, थैंक यू। देखते हैं। डन। वो सारी 35 फाइल्स इंपोर्ट हो गई हैं। इंपोर्ट होने के बाद उसमें कुछ कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग के मैंने मतलब ओपनिंग बैलेंस वगैरह जो भी लॉजिक्स लगाने थे वो सारे लगा दिए हैं, और उनको आगे जाके सीधा अब चाय आने के पहले पहले मेरा पूरा ऑडिट प्रोसीजर रेडी है। मुझे सिर्फ अपने जूनियर्स को ये बताना है, जहां जहां पे 3 कलर दिख रहे हैं मतलब वो डाउटफुल है, उनका एक मास्टर्स का स्क्रीनशॉट ले लेना, ट्रांजैक्शंस में प्रीपेमेंट्स देख लेना और समराइज कर लेना।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये एक्टिविटी फॉर एन एवरेज एक्सेल यूजर हो सकता है हाफ एन आवर टू 1 आवर ले जाए, और आपका ऑडिट करने का दिन का आधा टाइम इस डेटा प्रिपरेशन में निकल जाए। प्लस ऐसे ही आपको हो सकता है 30-40 ब्रांचेस करनी है। तो सच काइंड ऑफ वॉल्यूमिनस वर्क, रिपीटेटिव वर्क, जहां पे ह्यूमन एरर के कारण, एक्यूरेसी के कारण गड़बड़ हो सकती है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी अचीव्ड बाय you can develop some self-help tools for yourself with the exposure जो अभी हमने 1 घंटे में डिस्कस किया है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। यही फंक्शंस है, बाकी सब आपका ऑब्जर्वेशन, आपका क्रिएटिविटी। अंडरस्टूड? एंड दिस इज प्री चैट जीपीटी एरा। सो आई होप दिस इज क्लियर। टाइप सी, अगर ये एग्जाम्पल और यूज केस आपको समझ में आया, प्लीज टाइप सी हियर। परफेक्ट। अब हम इसे ना बैकएंड से समझेंगे। देखिए, मैं ये फाइल क्लोज कर रहा हूं, डोंट सेव। ये मैंने सिर्फ आप लोग को वापस से जगाने के लिए किया था। वापस से बैकएंड पे आते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, यूज केसेस आर अनलिमिटेड। आपके हर क्लाइंट का कुछ ना कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होगा। यू शुड बी केपेबल एंड इवॉल्व इनफ कि आप वो सारी चीजें कर पाए। चलिए, हमने जो ये मैक्रो बनाया था, इसको रन करने का क्या तरीका है? मुझे अगर इस सेल से स्टार्ट करना है और इस सेल को फॉर्मेट करना है, ओके, तो ये बताइए, मैं मैक्रो 4 यूज करूंगा कि 5? क्विक रिस्पॉन्सेस प्लीज। मुझे A3 से स्टार्ट करना है और B5 को फॉर्मेट करना है, तो मैं मैक्रो 4 यूज करूंगा कि 5? मे बी स्पॉन्ट इज नॉट विजिबल। देखिए, मैक्रो 4 में हमने रेंज B2 को लॉक किया था और मैक्रो 5 में हमने ऑफसेट यूज किया था। तो बताइए 4 या 5? नो प्रॉब्लम। सी, क्योंकि हम यहाँ पे डायनेमिकली वर्क कर रहे हैं, तो हमें मैक्रो 5 को रन करना है। अगर 4 रन किया तो वो वापस B2 को फॉर्मेट कर देगा। रन करने के स्टेप्स क्या है, इमेजिन करके बताइए, कितने क्लिक्स में मैं मैक्रो 5 रन कर सकता हूं? क्विक, कितने क्लिक्स लगेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, कितने क्लिक्स लगेंगे? सोचिए। लेट्स सी, हम मैक्रोज में गए। पहले तो ये देखना है कि डेवलपर टैब एक्टिव है कि नहीं। अगर कोई दूसरा टैब एक्टिव है तो एक क्लिक चला जाएगा डेवलपर टैब में। फिर मैक्रोज में, फिर मैक्रो 5 सिलेक्ट किया, जहां पे आप डबल क्लिक भी कर सकते हो या एक क्लिक करके रन कर सकते हो। करेक्ट? तो 4 क्लिक्स की कहानी है अभी। अगर मैं मैक्रो 5 को 3 बार और रन करूं तो क्या होगा, देखते हैं। मैक्रो 5 रन, इधर आ गया। फिर से मैक्रो 5 रन, इधर आ गया। एक स्टेप्स सीढ़ी बनती जाएगी। करेक्ट। इसी की जगह पे अगर मैं 4 बार मैक्रो 4 रन कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं। मैक्रो 4 रन, इधर आके इसने फॉर्मेट किया होगा। फिर से मैक्रो 4 रन, सेम एक्टिविटी। फिर से मैक्रो 4 रन, सेम एक्टिविटी। तो ये क्लियर हो गया कि हमें जब नेविगेट करना है डायनामिकली तो ऐसे करना है, मैक्रोज एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंसेस के साथ और यहाँ पे एब्सोल्यूट के साथ। कहानी जो थी क्लिक्स की, क्लिक्स मैं कम करना चाहता हूं क्योंकि ये भी लेंदी है। क्लिक्स को कम करने के लिए हम हेल्प लेंगे इस वाले विंडो की, VBA विंडो की। ओके, आप लोग अपनी स्क्रीन पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक प्ले बटन कहीं छुपा होगा ऊपर रिबन में, देखते हैं। ये रहा,
यहाँ पे एक प्ले बटन छुपा हुआ है। प्ले बटन में आप हवर करेंगे ना तो आपको F5 करके एक शॉर्टकट भी दिखाएगा। ओके, तो ट्राई करते हैं। हम अभी मैक्रो 5 पे हैं और एक्टिव सेल हमने रख दिया A6। यहाँ पे मैं VBA विंडो पे आके इस प्ले बटन को क्लिक कर रहा हूँ, तो मैक्रो 5 रन हो गया। अब मैं क्लिक करने की जगह F5 दबा रहा हूँ, फिर रन हो गया F5 F5। तो देखिए वहां पे जो हमें मैक्रो सिलेक्शन का टाइम लग रहा था वो पूरा स्टेप इधर एक बटन पे हो जा रहा है F5 F5। अंडरस्टूड? अगर मुझे मैक्रो 4 रन करना है तो मैं मैक्रो स्विच कैसे करूंगा? देखिए यहाँ पे ऊपर में ना मैक्रो 5 सिलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मेरा अभी कर्सर इस मैक्रो 5 के एरिया में है। मैंने जैसे ही मैक्रो 4 के एरिया पे कर्सर क्लिक किया तो अब ये मैक्रो 4 एक्टिव हो गया है। और मैं अगर मैक्रो 4 एक्टिव करके F5 दबाऊंगा तो वापस कहां ले आएगा? B2 पे। अंडरस्टूड? तो मैक्रोस को रन करने के लिए बैक एंड से रन करना है तो ये बटन है, सॉरी फ्रंट एंड से रन करना है तो ये बटन है, और बैक एंड से रन करना है तो F5 है। यहां से कहानी होती है इंटरेस्टिंग। मुझे अगर कोई मैक्रो को स्लो मोशन में रन करवाना है, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, तो वो होगा F8 बटन से। ध्यान दीजिए, मैंने मैक्रो 5 को एक्टिवेट कर दिया और मैंने अभी F8 दबाया। ओके, तो एक येलो लाइन आ गई, सबको विजिबल है। प्लीज टाइप Y फॉर येलो, Y फॉर यस। डियर मेंबर्स, प्लीज टाइप यस। येलो लाइन विजिबल है? हेलो हेलो, गुड। तो देखिए ये एक बार F8 करने से एक येलो लाइन आई है, अब वो लाइन बाय लाइन इसे इंटरप्रेट करेगा। एक और बार मैंने F8 दबाया तो नीचे आ गया। ये जो येलो लाइन है ना, ये अब एग्जीक्यूट होने वाली है, हुई नहीं है। ओके, तो अब अगर मैं एक और बार F8 दबाता हूं तो मेरा एक्टिव सेल A11 से क्या हो जाएगा? B12। आर यू गेटिंग इट? चेंज हुआ। फिर F8 दबाया, अगर यहाँ टेक्स्ट लिखा होता तो वो बोल्ड होता दिखता। फिर F8 F8 F8, अगर यहाँ पे कुछ पहले दूसरा कलर होता तो अब वो येलो हो जाता ब्लैंक से। आई होप यू आर गेटिंग दिस। F8 F8, अगर टेक्स्ट लिखा होता तो वो इस F8 दबाने पे रेड हो जाता। ये सब क्लियर है यहां तक? प्लीज टाइप F8 अगर F8 वाला कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है आप सबको। एवरीवन क्विक, थैंक यू। अब ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन प्लीज। हमने मैक्रो रन करके A11 से B12 तो ले आया और हमने फॉर्मेटिंग भी कर दी, लेकिन इस स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, VBA में क्या ये एंड विथ के बाद मैं F8 कर दूं तो अब वो एंड सब पे आ गया? क्या अब ये मैक्रो एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है कि पेंडिंग है? करेक्ट, अभी एग्जीक्यूशन पेंडिंग है। क्यों? ये एंड सब अभी रन होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा एग्जीक्यूशन अभी पेंडिंग है तो एक्सेल की स्क्रीन पे ना ये जो रिकॉर्ड मैक्रो वाला बटन है वो डिसेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि जीने के हाथ खाली ही नहीं है। जब तक मैं इसे पूरा एंड नहीं करूंगा मैं इसे यहाँ पे नया काम सिखा भी नहीं पाऊंगा। इसीलिए ये सब चीज को इतना स्लो मोशन में समझाना भी इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर ऐसे लाइन बाय लाइन रन करके देख रहे हैं तो एंड सब के आगे भी जाना है, एक F8 और दबाना है। ओके, अब देखिए एक F8 हुआ, फ्रंट एंड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारा बैक एंड पे वो एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है और अब ये वाला रिकॉर्ड मैक्रो वाला बटन भी इनेबल हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर। अब एंड सब के आगे वो फिर उसी लूप में उसी मैक्रो को रन करता जाएगा। तो हमें अगर वापस से देखना है तो मैं फिर से F8 F8 कर रहा हूं, देखिए एंड सब चले गए, फिर मैंने F8 दबाया, एंड हुआ, फिर वो रीस्टार्ट हो गया। तो दिस इज हाउ जीनी
रन्स इन लूप्स, मतलब एक काम को अगर मुझे 1,00,000 बार करवाना है तो मैं उसे लूप में डाल दूंगा और उसको काउंटर दे दूंगा 1 to 1 लाख, तो वो लूप में चलेगा। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं है कि F5 मैक्रो 5 के बाद वो जंप करके मैक्रो 6 रन करने लगेगा, वो मैक्रो 5 सिलेक्टेड है तो मैक्रो 5 पे ही रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज टाइप सी इफ इट इज क्लियर, क्योंकि आगे एक और इंपॉर्टेंट एरर मैनेजमेंट वाला पॉइंट है जो कवर करना चाहिए। M language is different, sir. It is for Power Queries. This is Visual Basic for applications. VBA is the programming language. Great, this is clear. Perfect. No problems. चलिए, अब अगर आप लोग सेशन में सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देख रहे हैं, तो अगले 2 मिनट में आपको हो सकता है एक चीख सुनाई देगी। देखते हैं कैसे। मैं अभी कहाँ हूं? C12 पे। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस मैंने ऑन कर दिया, मैक्रो 6, और मैं चला गया A1 पे। ठीक है, A1 पे जाके मैंने वापस से वो फॉर्मेलिटी वाले फॉर्मेटिंग कर दिए और फिर मैंने जाके कर दिया इसे स्टॉप। ध्यान से देखिए, हमने मैक्रो 6 में क्या किया? C12 पे थे और हम चले गए A1 पे और वहां पे हमने फॉर्मेटिंग कर दिया। ओके, अब बताइए, अगर मेरा एक्टिव सेल B6 है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन एंड पार्टिसिपेट। मेरा एक्टिव सेल अगर B6 है और मैं मैक्रो 6 रन कर दूं तो क्या जीनी चिल्लाएगा? यस और नो? चैट्स प्लीज। ओके, लेट्स सी। हमने जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी ना, तब यूज रिलेटिव रेफरेंसेस ऑन कर दिया था और हमने रिकॉर्डिंग की थी जी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सो दैट यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग। चलिए रन करके देखते हैं। हम मैक्रोज में गए, मैक्रो 6 एंड रन। एरर आना ही था। क्यों? क्योंकि जीनी क्या करने की कोशिश कर रहा है? 11 रोज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और 2 कॉलम्स लेफ्ट जाने की कोशिश कर रहा है। अपन कुल मिला के उसको खाई में धकेल रहे हैं, जगह ही नहीं है, शीट खत्म हो गई है। अंडरस्टैंडिंग? तो ये एरर आ रहा है, इसीलिए चीख सुनाई देती क्योंकि जीनी चिल्लाता। समझ में आया? अब बताइए, ये जो लिखा हुआ है रन टाइम एरर 1004 एप्लीकेशन डिफाइंड और ऑब्जेक्ट डिफाइंड एरर, आप इसको अगर गूगल करने या चैट जीपीटी पे समझने चले गए, ठीक है, मल्टीपल लाइफ टाइम्स तक वापस नहीं आ पाएंगे। प्लीज रिमेंबर, वी आर नॉट कोडर्स, वी आर नॉट प्रोग्रामर्स। हमें पतली गली से बच के निकलना है। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इतना ज्यादा एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है कि आपको वो सिखाता तो रहेगा बट खो देंगे हम, पूरा ट्रैक छूट जाएगा। तो करना क्या है? अगर नॉर्मल कोई यूजर होता जिसे ये सब नहीं पता, तो वो तो एंड कर देता, तो मैक्रो एंड हो जाता। हम क्योंकि आज ये बैकएंड समझ रहे हैं तो हम करेंगे डीबग। डीबग करने से क्या होगा? वो उस लाइन पे जाके रुक जाएगा जहां पे वो एरर फेस कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास 1000 कोड की लाइन हो, 500 लाइंस एग्जीक्यूट हो गई, 501 पे एरर आया, तो वो उस वाली लाइन पे जाके उसे येलो करके हाईलाइट करके रुक जाएगा कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अंडरस्टैंडिंग? तो हमें बस ये लाइन आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपको नहीं पिन पॉइंट हो पा रहा कि ये एरर क्यों आया, तो यहां पे वापस F8 करने से कुछ होगा क्या? नेक्स्ट लाइन पे क्या जा पाएगा? नहीं। F5 से कुछ होगा क्या जो एक बार में रन करता है? नहीं। तो हमें यहां पे ऊपर देखिए, ये प्ले के बाजू में ही ना 2 आगे में स्टॉप बटन है, रीसेट बटन, ये क्लिक करना है, तो दिस विल एंड दैट मैक्रो। ओके, अब आप वापस से शुरू से F8 करके एक बार फ्रंट एंड पे देख लीजिए कि कौन से स्टेप पे मेरा अजम्पशन और जीनी का अजम्पशन चेंज हुआ।
मैं कुछ और समझाना चाह रहा था, उसने कुछ और समझ लिया। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू डीबग फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप समझ रहे हैं? हमें टेक्निकल कोडिंग पे नहीं जाना है, इनफैक्ट ज्यादा कोड एडिटिंग पे भी नहीं जाना है, सब चीजें आपको गूगल पे मिल जाएंगी और आपको सिर्फ वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ डालना है और आपको डीबग करना आना चाहिए। मतलब आपको ऐसे ही स्प्लिट स्क्रीन पे एक्सेल और वीबीए साथ साथ रखना है और आपको F8 करके चेक करना है कि जो मैंने गूगल से या कोई चैट जीपीटी से आउटपुट मांगा था, क्या वो कोड वैसे ही स्टेप बाय स्टेप रन हो रहा है। दिस इज ऑल दैट वी नीड टू डू। हमको उनके कोड को टेस्ट करना है। अंडरस्टैंडिंग? उसके लिए जो बेसिक्स चाहिए थी वो हमने यहाँ पे कवर कर ली। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो VBA विंडो पे आपको ध्यान रखना है F5 इज टू रन द कोड एट वंस एंड F8 इज टू रन द कोड वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। शुभ जी, आप जो बोल रहे हैं ये सब तो कोड हमने लाइव जनरेट किए हैं रिकॉर्डिंग ऑन करके। अब मान लीजिए आपके ऑफिस में कहीं पे आप स्टक हो गए, आपको लग रहा है कि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, तो वो सिचुएशन आप समझाइए, उनको बोलिए गिव मी, चैट जीपीटी को बोलिए गिव मी एक्सेल VBA कोड, वो कोड आपको दे देगा। अब उसे आपको वेरीफाई कैसे करना है? अभी AI में उतना रिलायबिलिटी नहीं है। हो सकता है कहीं हमारे एंड से रिक्वायरमेंट देने में कुछ गैप रह गया हो सकता है कि कुछ एजम्पशंस में गैप रह जाए। तो हम उस चीज को वैलिडेट कैसे करेंगे, मॉड्यूल्स में कैसे जाना है, मेरा फोकस था कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। स्क्रीन विजिबल है आप सबको को? आई वांट VBA कोड टू कन्वर्ट numbers to words in rupees. This is a common use case. सर्वर एरर है शायद। लेट्स गूगल। चेक करते हैं। देखिए हमने ये वाला एग्जांपल लिया, अब ये वही बोल रहा है हाउ यू हैव टू क्रिएट अ न्यू VBA मॉड्यूल, उसके बाद ये कोड कॉपी पेस्ट करना है। तो हम मॉड्यूल तक तो पहुंच गए हैं, ये जो कोड है इसको कॉपी करना है। कॉपी कर लिया, आपके VBA विंडो पे आना है, पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप,
इन्होंने एक फंक्शन बना दिया है, फंक्शन में जाके आपको उस मॉड्यूल को रिकॉल करना है। तो हम एक्सेल में आते हैं, रूपी फॉर्मेट एंड तो देखिए ये एक तरीका है हमें VBA फंक्शंस यूज करके एक्सेल में फॉर्मूलेज बनाने का। दिस इज वन यूज केस। आपको अगर जो बैंक ऑडिट वाला एग्जांपल लिया था हमने वैसा कोई यूज केस है तो आप वो रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे कोड पे डाल सकते हैं और उसको रन करके डीबग करके देख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। करेक्ट। शुभ जी आप जो बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल फॉर्मूले, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया डाउट है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शुभ जी। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए 3-4 शीट्स बना दी और मैं अब शीट 4 पे एक मैक्रो रन कर रहा हूं। मैक्रो लेकिन मैं दिस वर्कबुक के जगह पे पर्सनल मैक्रो बुक से उठा रहा हूं। यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट का मैंने मैक्रो बना के रखा हुआ है, मैंने इसको रन किया तो इसने क्या किया, हर शीट के सेल A1 पे एक हाइपरलिंक बना दी और वो हाइपरलिंक इस टेबल ऑफ कंटेंट्स की शीट पे जा रही है। तो ये एक तरीके से मेरा इंडेक्स बन गया जहां पे मैं बाकी सारे शीट्स को समराइज कर दूं। आप लोग से डिस्कशन ये करना है कि ये जो मैंने अभी टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला मैक्रो रन किया, इज दिस स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर बैंक क्लाइंट और इट इज अ जनरल पर्पस यूनिवर्सल थिंग जो मेरे सारे असाइनमेंट्स में सारे टाइप की वर्किंग में काम आ सकता है। हमने अभी जो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला मैक्रो रन किया, क्या यही मैक्रो मैं उस बैंक ऑडिट में भी यूज कर सकता हूं ताकि मुझे सारी शीट्स की एक हाइपरलिंक मिल जाए और मैं सारे एनपी अकाउंट्स का समरी, टोटल काउंट, टोटल वैल्यू एक जगह पे समराइज कर लूं तो उनकी लाइन वाइज आइटम तो उस शीट में मिलेगी। ओके, तो देखिए ये जो पॉइंट है ना, हमें इसे कैसे मैनेज करना है। आपको पहले जब रिकॉर्ड मैक्रो में जाना है तो दिस वर्कबुक के जगह पे आप यहाँ पे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक सर्च कीजिए। इससे क्या होगा, अब आपका मैक्रो इस फाइल में नहीं एम्बेडेड है, वो आपकी एक अलग से डेडिकेटेड फाइल बना रहा है सी ड्राइव के अंदर पे, उस फाइल में सेव करते जा रहा है और ये वाली सारी मैक्रोज जो है मैक्रो 7 ये आपके सारे एक्सेल फाइल्स के लिए यूजफुल होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो शुभ जी का जो पॉइंट था कि यूनिवर्सल फॉर्मूले बनाने हैं तो उसको आप पर्सनल मैक्रो बुक में डाल के देखिएगा और फिर ट्राई कीजिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। मैंने अगर दिस वर्कबुक किया तो दिस वर्कबुक में तो वो उस लोकल फाइल पे सेव हो गया, वो दूसरी जगह यूजेबल नहीं है। लेकिन पर्सनल मैक्रो बुक कर दिया तो वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट फाइल पे है जो एक सर्वर टाइप काम कर रहा है, जो मेरे सारी बाकी फाइल्स पे ट्रिगर कर सकता है और मेरा इससे एक्सटेंशन भी चेंज नहीं होगा। डॉट एक्सएलएस एक्स के जगह डॉट एक्सएलएस एम मैक्रो इनेबल्ड भी नहीं करना पड़ेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। होस्ट प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम डू वी हैव मोर। So we have almost overshooted, Prateek. Okay. So we Okay, can okay. close probably as once you are done with this. Perfect. So I'll just share the template on the Google Sheets that will help the team collaboration part. I can share that link also here. Excel वाला पार्ट हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। आपको कुछ अगर डाउट्स होंगे so you can connect separately and you can obviously rewatch the recordings. And there was a query with respect to recording. So all the recordings of our previous sessions are also uploaded on our channel. So if you can subscribe, so all as and when they are uploaded, you will get a notification. Perfect. ठीक है, आप लोग को ये गूगल शीट विजिबल है सब कोई को? राइट। तो देखिए ट्रिपल टी, टास्क, टाइम एंड टीम मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक ऑलवेज बर्निंग टॉपिक रहता है कि हम हमारे ऑफिस में ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं।
तो हमारे जितने भी टास्क हैं पहले तो कंप्लीट होने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए, टाइम से होने चाहिए, और अगर हमने किसी को डेलीगेट किया है तो उससे हम फॉलो कर पाए, चेक रख पाए, वो हमें अचीव करना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल। हम एक सिंपल टेम्पलेट यहाँ पे सबके साथ शेयर करना चाह रहे हैं जो कि आपको एक फर्स्ट स्टेप लेने में हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स पे जाने से क्या है, कई बार यूजर्स को एंजाइटी होती है, तो अडेप्टेबिलिटी लो हो जाता है, राइट। सो फॉर एनी काइंड ऑफ टास्क मैनेजमेंट दीज आर द बेसिक थिंग्स। हमने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से मल्टीपल शीट्स बना दी है। एक कॉलम है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट मैनेजर, यहां से हमारा टास्क सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, टास्क का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, किसे असाइन किया हमने वो आ जाएगा, ड्यू डेट, और उस पे जो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है उसके लिए एक रिमार्क्स कॉलम। स्टेटस में हमने चेकबॉक्स इंसर्ट कर दिया है, यहां से इंसर्ट में जाके टिक बॉक्स, तो वो काम जैसे ही टिक होगा आपको यहाँ पे अपडेशन हो जाएगा। अब ये टेम्पलेट तो अलग अलग शीट्स पे चल जाएंगे, आपको एज अ प्रोप्राइटर, एज अ पार्टनर ये सब चीजों को ट्रैक करना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज क्वेरी। क्वेरी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डेटा बता दिया कि हमें हर शीट के किस किस डेटा को एक्यूमुलेट करना है, और आगे हमने कंडीशन बता दी कि भाई उसी डेटा को लाना जो कि ब्लैंक ना हो, नहीं तो हर शीट के हजार हजार रोज आ जाएंगे। तो पहले हमने फिल्टर कर दिया कि भाई जहां पे डेटा है, जहां पे मतलब टास्क बना हुआ है कॉलम ई पे, उसको लाओ, और उसमें भी हेडर्स हटा दिए ताकि हर शीट के हेडर रिपीट ना हो। तो ये जो आपका ऑल वाली शीट है, यहाँ पे आपको फिल्टर करके हर एक बंदे का स्टेटस मिल जाएगा, आप इधर से फॉलो अप कर सकते हैं। ये हुआ सबसे प्लेन वेनिला वर्जन। सब चीजें हमने फ्री छोड़ दी है, कोई वैलिडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब गड़बड़ कहाँ होती है, जब डेटा एंट्री करते हैं यूजर्स, तो वहां पे चीजें यूनिक मतलब सिस्टमैटिक नहीं रहती। तो मुझे यहाँ पे डेट डालना था, किसी और यूजर ने डाला, उसने फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो इस टाइप की चीजों को सेव करने के लिए वी यूज डेटा वैलिडेशन। आपको डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे न्यू रूल सेलेक्ट करके लॉजिक बता देना है कि दिस शुड बी अ वैलिड डेट। इससे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो मुझे वो डेट का कैलेंडर व्यू आ जाएगा। तो फॉर्मेट कुछ भी हो, डेटा सही आ रहा है मेरा। ये अभी DDMM स्लैश फॉर्मेट में है, किसी को और फॉर्मेट में चाहिए तो वो देख लेगा। सेम फॉर्मेटिंग इधर भी डाल सकते हैं, कंप्लीशन डेट। दिस इज वन लेवल अप। हमने क्या किया, सारे डेट कॉलम्स में वैलिडेशन डाल दिया कि भाई रैंडम नंबर्स ना आ जाए, टेक्स्ट ना आ जाए। अब अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करूं तो मेरे को यूजर सिस्टम रोक देगा, बता देगा कि यहाँ पे वैलिडेशन एरर ब्रेक हो रहा है। अंडरस्टूड। अगर मुझे एंट्रीज रेस्ट्रिक्ट करनी है तो मैं वहां पे सेटिंग्स पे जाके चेंज कर सकता हूं, रिजेक्ट द इनपुट। तो अब अगर मैंने कुछ किया तो वो मेरे को एंटर ही नहीं करने देगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस चीज को आपको मेंटेन कैसे करना है, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट 3 नया बनाया, प्रोजेक्ट 3 का टास्क शीट नेम कॉपी कर लिया, और इधर क्वेरी में जाके अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रोजेक्ट 1 और 2 तो टैग्ड है, मुझे सेमीकोलन डाल के प्रोजेक्ट 3 डालना है और वही रेफरेंस देना है A to J। तो अब मेरा प्रोजेक्ट 3 भी इसमें लाइनअप हो जाएगा। तो जितनी आपकी शीट्स बनेंगी वो सब कोई को आपको यहाँ पे ऐसे अपडेट करते जाना है। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स हम इसमें कुछ चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रोजेक्ट 3 मैंने अलग बनाया है जहां पे ये डेट्स ऑटोमेटिकली आएंगे, बट आपको एक सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। फाइल में जाके, सेटिंग्स में जाके कैलकुलेशन को आपको ऑन करना है और मैक्सिमम 1 टाइम करना है। आप ये जैसे ही सेटिंग्स चेंज करोगे ना, अब जब जब कोई टास्क मैं क्रिएट करूंगा तो वो अपने आप डेट ले लेगा, और यहाँ पे यूजर जब जब उसे टिक करेगा
तो यहाँ का भी डेट ले लेगा। तो आपके ऊपर है, आप अगर थोड़ा सा और ऑटोमेशन चाहते हैं, एक सेटिंग्स चेंज करके देख लीजिएगा। अगर प्लेन वाला चीज चाहते हैं तो ये करके देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, टूल इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऑपरेशनल एक्सीलेंस चाहिए ऑफिस में, इट इज द डिसिप्लिन लेवल ऑफ द यूजर्स दैट क्रिएट्स मैजिक। सेटिंग्स वापस समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने जैसे ही इसे डिलीट किया ना तो वो टाइम हट रहा है, नया टास्क आया तो नया टाइम आएगा, करंट टाइम। तो ये एक आइटरेटिव कैलकुलेशन होता है, वो कॉन्स्टेंटली खुद की वैल्यू भी चेक कर रहा है कि मेरे पास पहले कोई वैल्यू सेव थी क्या, और वो बाजू वाली सेल भी चेक कर रहा है जहां पे टास्क बनने वाला है। तो वो कैलकुलेशंस बाय डिफॉल्ट ऑफ होते हैं, आपको सेटिंग्स में जाके उसे एक बार ऑन करना पड़ता है। ये जैसे ही आप ऑन करेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 1 कर दीजिए, एक आइटरेशन में उसका काम हो जाता है, तो फिर आपके ये फॉर्मूलेज वर्क करने लगेंगे। दिस इज इन शीट 3। The date is taken from this version, local version of this sheet। मैंने जैसे ही टिक किया तो ये गूगल सर्वर पे जो हमारे लोकल के हिसाब से वर्जन टाइम चल रहा होगा वो टाइम ले लेता है। अब इसे आपसे शेयर कर देता हूं चैट्स में, प्लीज चेक आप लोग इसको कॉपी कर पा रहे हैं कि नहीं। आप लोग के पास गूगल वाला लॉगिन किया होना चाहिए। देखिए एक बार, करेक्ट करेक्ट। आपका लोकल पीसी में अगर डेट टाइम चेंज भी कर दूं तो ये तो ब्राउजर से चल रहा है, ये मेरे लोकल सिस्टम से लिंक नहीं है। हम साथ में डैशबोर्ड बिल्ड करना चाहते थे, बट मे बी इन द नेक्स्ट सेशन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप वी कुड हैव एन एक्सपोजर इनटू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, एंड जहां पे हमें कोलैबोरेशन की नीड है वी कैन यूज दीज गूगल शीट्स। प्लीज इसकी एक मेक अ कॉपी बना लीजिएगा, फाइल में जाके मेक अ कॉपी एंड यू कैन यूज इट, राइट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू द होस्ट। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Pratik. It was really a very wonderful as well as insightful session. And I believe the participants must have been benefited greatly out of it. So thank you, Pratik, once again. And I think the topic was really, really very much justified that in the deliberations which you have given today, that was very much justified, that it has actually acted as a toolkit for chartered accountants. So it was really a very insightful session. So now I would kindly request our secretary, our secretary for the VIPCA, CA Vikas Batwal Bhaiya, to offer a formal vote of thanks to CA Pratik Batwal, the speaker for the day. And before he does, I request all of us to please open your or start your cameras so that we can have a virtual selfie with all lightning faces that we have learned VBA today, and probably glimpses of Google Sheets. So a simple request to please switch on all your cameras. Thank you. Back to Vikas Bhaiya. Thank you, Sumit. Thank you, Rahul, for organizing such a wonderful 8-week session on AI. And thank you to my younger brother, Pratik, for rendering his wonderful session regarding macros and Google Sheet. I thank you also all the audience in Zoom for their patience hearing and gaining knowledge regarding AI. Thank you all. Thank you. So on 8th of March, we have our annual conference that is in CD Center 1, and I would request people who are in Kolkata, please join us, and we have at least 3 more sessions lined up for you. So we see you in the next session, which is on the next Friday. So thank you all. Thank you, Pratik, for sparing your time and sharing your insights. And it was so easy. एक Excel sheet में एक छोटे से जगह से आपने macro समझाया हमें. Thank you so very much for sparing time. Thank you everyone for your patience. End the call for all, and all the recordings of the sessions are available on our YouTube channel. Please subscribe, or even if you don't, so you can see the videos. But the reason I'm asking you to subscribe is that whenever we upload a video, you get a notification. So thank you so much. Thank you, Anil Bhaiya. Thank you, bye. Thank you, Rohit. Thank you all for joining us. Thank you. Thank you, Bhaiya.
Thank you, Pratik. Thank you, Bye-bye. Pranav. Bye. Pranam. For sure.